اساتذہ احتجاج کا 8واں روز والدین بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند، پنجاب سرکار اور ٹیچرز تنازع میں لاکھوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ میں اساتذہ مظاہرین نے تدریسی عمل کے ساتھ ساتھ ڈینگی ایکٹیویٹیز کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ گرینڈ ٹیچر الائنس کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ آج سے اسکولوں کی ہر قسم کی ڈاک کا بھی بائیکاٹ ہوگا۔ اسکولوں کی نجکاری کسی صورت منظور نہیں۔ حکومت اساتذہ کا معاشی قتل کر رہی ہے۔ حکومتی رویے نے ہمیں احتجاج پر مجبور کیا۔ ہم نے احتجاج ختم نہیں کیا، ہمارا جاری ساری ہے جب تک ہمارے مطالبات جو ہیں جائز مطالبات وہ منظور نہیں کر لیے جاتے۔ اسکولوں کی نجکاری ہے، لیو انکیشمنٹ ہے، 17A ہے، اسی طرح دیگر ظالمانہ قوانین جو پینشن قوانین ہیں ان میں ترامیم کی گئی ہے، ان کو واپس حکومت نہیں لے لیتی یا مطالبات منظور نہیں کر لیے جاتے، تب تک ہم احتجاج جاری رکھیں۔ ارباب اختیار کو چاہیے کہ یونین سے مذاکرات کریں، وہ ڈیسائیڈ کریں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم سب کو منظور ہوگا۔ ٹیچرز یونین کا مزید کہنا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اسکول دینے سے پڑھائی خواب بن جائے گی۔ والدین ہزاروں روپے فیسیں برداشت نہیں کر سکتے، جس سے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ چکا۔ اساتذہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے چہتے پرائیویٹ سیکٹر کو نوازنا چاہ رہی، جن کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ ریاست قوم کے بچوں کو تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات کی فراہمی میں ناکام ہو چکی۔ کیمرہ مین محمد رندیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ کم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں رواں مالی سال کی پہلی ساماہی فیصل آباد سے ٹیکس کلیکشن میں گزشتہ سال کی پہلی ساماہی کی نسبت 41% اضافہ، انکم ٹیکس وصولی میں 33% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عمیر عصمت کی رپورٹ دیکھیے۔ مشکل معاشی حالات میں بھی FBR کا ٹیکس ہدف مکمل۔ رواں مالی سال کی پہلی ساماہی میں فیصل آبادیوں سے 34 ارب 60 کروڑ روپے ٹیکس وصول کیا گیا۔ گزشتہ مالی سال کے اس دورانیے میں ٹیکس کلیکشن 24 ارب 55 کروڑ روپے تھی۔ ستمبر میں 12 ارب کا ٹارگٹ پار کرتے ہوئے 13 ارب سے زائد کی ریکوری کی گئی۔ رواں سال کی پہلی ساماہی میں انکم ٹیکس وصولی 22 ارب 40 کروڑ روپے رہی۔ گزشتہ مالی سال کے اس عرصے میں 16 ارب 80 کروڑ روپے انکم ٹیکس وصولی ہوئی تھی۔ FBR حکام کے مطابق ٹیکس اہداف کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین رانا ادریس کے ساتھ میں عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ راستے کھل گئے، آمد و رفت بہا، لیکن راستوں کی بندش کا بہانہ بنا کر مہنگی کی گئی سبزیاں پھل سستے نہ ہو سکے۔ مرغی 594 روپے کلو، انڈے فارمی 292 روپے فی درجن فروخت، آلو 82 روپے، پیاز 160 روپے، ٹماٹر 120، ادرک 730، گھیا کدو 125 روپے کلو دستیاب، لہسن 560 روپے، سبز مرچ 145 روپے، پھول گوبھی 95، بند گوبھی 105 روپے کلو میں فروخت، اروی 145، بینگن 75، کھیرے 125 روپے، پالک 45 روپے، شملہ مرچ 285 روپے مقرر، سیب گاچا 220، سیب کالا کلو 240، انار دیسی 260 روپے فی کلو، ناشپاتی 170 روپے، شکرقندی 110 روپے فی کلو، انگور سنر خانی 460 روپے، آڑو 360 روپے، آم چوسا کالا 160 روپے، آم دیسی 120 روپے فی کلو مقرر، کیلا درجہ اول 120 روپے، جبکہ میٹھا 210 روپے فی درجن دستیاب۔ ہنگ میں گرا فروشی عروج پر پہنچ گئی، چکن سرکاری قیمت 593 روپے، جبکہ مارکیٹ میں 610 روپے سے 630 روپے فی کلو فروخت۔ سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی دکانداروں کی منمانیاں جاری۔ سرکاری ریٹ اس کے مطابق انڈے 292 روپے فی درجن مستحکم، آلو کی سرکاری قیمت 120 روپے، مارکیٹ میں 140 روپے تک فروخت، پیاز 5 روپے کمی سے 145 روپے، بازار میں 160 روپے فی کلو بکنے لگا۔ ٹماٹر کی قیمت 105 روپے، مارکیٹ میں 140 روپے میں دستیاب۔ سیب کالا کدو 250، کیلا 5 روپے کمی کے بعد 160 روپے فی درجن، انگور سندر خانی 600 روپے، آڑو 240 روپے، آم کی مختلف اقسام 150 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے۔ روٹ میں چکن 594 روپے کلو، انڈے 292 روپے فی درجن، آلو کی قیمت 130 روپے کلو، بیچا 160 میں جانے لگا۔ پیاز 140 روپے کلو، دام 160 روپے میں فروخت، ٹماٹر 40 روپے فی کلو، کمی کے بعد 100 روپے فی کلو پر آ گیا۔ لہسن 530 روپے، ادرک 720 روپے، فروخت 800 میں ہونے لگا۔ کھیرا 120 روپے، سبز مرچ 500 روپے فی کلو، کمی کے بعد 145 روپے فی کلو۔ لیمو چائنا 120 روپے، دیسی 350 روپے، فروخت 450 میں ہونے لگا۔ ٹیکسنگ میں چکن 594 روپے کلو، انڈے 280 روپے فی درجن مقرر، آلو کی سرکاری قیمت 140 روپے، مارکیٹ میں 150 میں فروخت ہونے لگا۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 105 روپے، مارکیٹ میں 150 روپے مقرر، پیاز کی سرکاری قیمت 145 روپے، مارکیٹ میں 160 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ لہسن 550، ادرک سبز مرچ 200 روپے، شملہ مرچ 350 روپے کلو مقرر، کریلا 160 روپے، گوبھی 110 روپے، اروی 145 روپے فی کلو میں بکنے لگی۔ سیب 210 روپے، کیلا 115 روپے فی درجن، آم 220 روپے، انگور 460 روپے فی کلو مقرر۔ شہریوں نے انتظامیہ سے اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں رشوت لینے کا الزام، 2 فیسکو ملازمین FIA کے ہتھے چڑھ گئے، مقدمہ درج،
फेस्को एहलकारों की शामत आ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लेने पर फेस्को के 2 एहलकार FIA की गिरफ्त में आ गए। हाजियाबाद सब डिवीजन के मीटर रीडर रिजवान अल्ताफ, खानवाना सब डिवीजन के लाइनमैन तनवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मीटर रीडर और लाइनमैन पर सार्फ से कनेक्शन की मद में पैसे लेने का इल्जाम है। कुछ रोज कबल फेस्को SDO वसीम बारी और मीटर टेस्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। फेस्को हुकाम का मुलाजमीन के खिलाफ सख्ती का फैसला, मुलाजमीन के घरों के कनेक्शन चेक करने का हुक्म, यूनिट्स और बिलों की अदायगियों का डाटा भी मांग लिया गया। 1300 फेस्को मुलाजमीन की बिजली की खपत का रिकॉर्ड भी तलब, मुलाजमीन के स्केल वाइज यूनिट्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। सफाई का नया मॉडल मुतारिफ, हफ्ते में 2 बार कूड़ा उठाया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद समेत पंजाब भर की सफाई सुथराई का नया तरीका। आउटसोर्सिंग के बाद कंपनियां कूड़ा घरों से उठाकर बराह रास्त डंपिंग साइट पर मुंतकिल करेंगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने हदायत जारी कर दी। सॉलिड वेस्ट कंपनियां हर घर में वेस्ट बिन मुहैया करेंगी। हफ्ते में 2 बार कूड़ा उठाया जाएगा। कूड़ा पहले की तरह पूरा हफ्ता इकट्ठा नहीं किया जाएगा। इससे अखराजात में कमी आएगी। आरजी कलेक्शन पॉइंट्स की वजह से पैदा होने वाले मसाइल से छुटकारा मिलेगा। सॉलिड वेस्ट कंपनियां प्लान बनाकर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने की पाबंद होंगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब करोड़ों रुपए का जंग ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट तकमील से कबल ही बर्बाद होना शुरू। लाइट्स चोरी होने लगी, इलेक्ट्रिक बोर्ड नाकारा होने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट रोशनियों से महरूम होने लगा। प्रोजेक्ट के तहत लगी लाइट्स गायब हो गईं, दीवारों पर लगी इलेक्ट्रिक बोर्ड की शीट्स भी फटने लगीं। मंसूबे के आगाज में ही शहर का हुस्न मांद पड़ने लगा। शहरियों ने इंतजामी सलाहियतों पर सवाल खड़े कर दिए। शहरी फंड्स के ज़या पर अफसोस का इजहार। जंग ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की तबाही एक तरफ, दूसरी जानब सड़कों की उखाड़ भी मसला बन गई। सीवरेज के लिए उखाड़ी गई सड़कों की मुरम्मत न हो सकी। गोजरा रोड, टोबा रोड, उजाला रोड, दारुस्कीना रोड समेत सेटेलाइट टाउन की गलियां बाजार तक मुतासिर। शहरियों ने मसले के हल की अपील की। जी ये साल हो गया, इधर रोड सारा खराब हो गया, पैप डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, हम इधर से गुजर भी नहीं सकते। तो बराए मेहरबानी ये सही कराएं और हम बहुत जलील हो रहे हैं। ये आगे स्कूल भी है, बच्चे भी गुजरते हैं, बहुत जलील होते हैं। सही इतने सेवरेज का निज़ाम होंदा पिया है, इतने मैंने लगता जो 10-15 साल इस लग जाने। इतों लंघने लिए कोई इतनी मुसीबत होंदी है ना, जो इतों लंघे नहीं जाता। जो बंदा कपड़े पाए हो मैंने तो वही बेकार जाते हैं। घरों कपड़े पा के निकलन कर दिल नहीं आना। जेड़ा लग रही है मैं निज़ाम इतने वेख लो, थोड़ी जी अग्गा वेख लो, इधे है वेख लो, कि जावन कर दिल नहीं आता। बंदा घर बाज के बैठा रहे। शहरी कहते हैं सड़कों की बहाली के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। एक तरफ DGPHA का रोज एक पार्क की हालत बेहतर बनाने का दावा, तो दूसरी जाने पार्कों की बदहाली पर सियाहों ने रुख करना ही छोड़ दिया। वैरानियां देखकर ठेकेदारों की भी अदम दिलचस्पी। रिपोर्ट देखिए। DGPHA डॉक्टर शहाब असलम ने दावा किया कि फैसलाबाद में सिलसिलावार पार्कों को बेहतर बनाया जाएगा। डॉक्टर शहाब असलम का कहना था कि हर टाउन में यौमिया एक पार्क को बेहतर बनाया जाएगा। जल्द PHA में 300 डेली वेजेस को बहाल किया जाएगा। PHA के रिसोर्सेज के हवाले से और मैन पावर के हवाले से पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी इश्यूज रहे हैं, लेकिन अभी हमारी कोशिश यही है कि सस्टेनेबली इसके सबसे पहले बुनियादी इश्यूज हल किए जाएं इदारे के, जिसमें सबसे पहले ऑक्शन किया गया है ताकि उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलप हों। इसके अलावा मजीद ऑक्शंस कर रहे हैं जो कि हमारी सर्विसेज हैं, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हो या पार्क्स की मेंटेनेंस के हवाले से हो, ताकि सस्टेनेबली इदारा चल सके। दूसरी जानिब PHA के ज़ेरे इंतजाम पार्कों की बदहाली एक बार फिर अदारे की तरक्की के आड़े आ गई। PHA हुकाम की जानिब से ओन सोर्स को बढ़ाने की एक और कोशिश नाकाम। पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ऑफिस में 3 पार्कों में 6 फूड पॉइंट्स की नीलामी का इनकाद में फूड पॉइंट बनाने के ख्वाहिशमंद सिर्फ 3 अफराद ने हिस्सा लिया, जबकि कश्मीर पार्क और बागे जना की बोलियां नाकाम हो गयी। 6 में से सिर्फ नवाज शरीफ पार्क की 2 कैफेटेरिया की नीलामी कामयाब हो सकी। DGPHA डॉक्टर शहाब असलम साहब जिस दिन से उन्होंने PHA का चार्ज संभाला है, उनका फुली फोकस जो है कि ऑन सोर्स जो PHA के अपने रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि जो है वो पार्क्स में जो है वो आवाम को जो है वो सहूलियात फराहम की जा सके। पार्कों की बदहाली के बायस ऑन सोर्स को बढ़ाना नामुमकिन होने लगा। ऐसे में DGPHA का दावा सच न हुआ तो PHA मजीद मसाइल का शिकार हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में अद्वियात की किल्लत, मरीज मार्केट से दवाइयां खरीदने पर मजबूर। सेहत सहूलत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मरीज भी मुश्किलात से दो चार। वसीम अजीज की रिपोर्ट देखिए। जंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अद्वियात का बड़ा फुकदान, ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड्स में मरीज परेशान। मरीज जरूरी अद्वियात भी बाजार से खरीदने पर मजबूर हो गए। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत भी मुफ्त अद्वियात की फराहमी ताअत्तुल का शिकार हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक फंड्स की कमी के बाइस अद्वियात का मसला दरपेश है। कहते हैं आला हुकाम को आगाह कर दिया है, जल्द मसले का हल हो जाएगा। मरीजों की जानिब से वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है।
अद्वियात की बहुत कमी है, हमें गरीब आवाम को बहुत मसला है। पहले इधर से मिल जाता था, अब हर बार कहते हैं बाहर से ले आओ। कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता और बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं हमें। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में इलाज करवाना भी मुमकिन न रहा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शोरकोट की रिहायशी इकरा ऑपरेशन के बाद लड़का बन गई। इकरा का तिबी मसाइल पर चेकअप करवाया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 17 साल इकरा को तिबी मसाइल की बाइस डॉक्टर के पास ले जाया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुहेल कहते हैं इकरा पैदाइश के वक्त ही लड़का था। घर में पैदाइश होने की वजह से पता न चल सका। मेडिकल की जुबान में मामले को जेंडर साइन कहा जाता है। हमारे पास ये बच्ची आई, इनिशियली इसका ब्रॉटअप एज फीमेल हुआ, बिकॉज हमारे यहाँ पर मेल अज़ा को देखकर ही एट बर्थ पता लगता है कि ये बच्चा है कि बच्ची है। क्योंकि इसका ताल्लुक गरीब घराने से और पुअर बैकग्राउंड से है, तो वहां पर इसकी दाई हैंडेड डिलीवरी हुई, घर में इसकी डिलीवरी हुई। तो दाई ने देखा जब मेल अज़ा नहीं थे, मर्दाना अज़ा नहीं थे, तो उन्होंने कह दिया कि ये फीमेल है, लड़की है। लेकिन हकीकत में ये एक लड़का था बाई बर्थ। अहले खाना ने इकरा का नया नाम हमदान रखा है। हमदान का कहना था कि मेरे रब का शुक्रगुजार हूँ और तिबी माहिरीन का एहसानमंद। आला तालीम के बाद मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताओ हमदान के क्या सोचा है आगे अपने फ्यूचर के बारे में? अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है तो मैं अपनी तालीम आखिर हद तक मुकम्मल करूंगा और कुछ बनकर दिखाऊं। हमदान के वालिद हनीफ ने कहा पहले मेरे 2 बेटे थे, अब 3 बेटे हो गए हैं। कैमरामैन नाना अदीस के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फंड्स की अदम दस्तयाबी या हुकूमतों की तब्दीली। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज गुलिस्तान कॉलोनी के तामीराती काम 4 साल में भी नामुकम्मल। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब। तालिबात का क्लासरूम्स की तामीर मुकम्मल करवाने का मुतालबा। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखेंगे। तालीमी इदारों के तरक्याती काम भी मसाइल की नजर। साबिक हुकूमतों के काम अदम दिलचस्पी का शिकार होने लगे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज गुलिस्तान कॉलोनी में भी तामीरात ठप होकर रह गई। तालिबात भी परेशान। काफी देर से यहाँ से काम रुका हुआ है। हमारी क्लास बहुत ज्यादा तंग हो जाती है, बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि इनके फंड जमा कराएं, इन क्लासेस को तमीर करवाएं ताकि हमारे बच्चे सही तरह मतलब एजुकेशन ले सकें। इधर होनी चाहिए तमीर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है हमें, यानी कि मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से टीचर को भी मुश्किल पेश आती है। बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसकी तमीर होनी चाहिए। कॉलेज में साबिक दौर में तामीराती कामों का आगाज हुआ। इंतजामिया ने महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद में टीचर्स डे की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। एजुकेशन राइट्स कमीशन के तहत कायद आजम अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट में मुकर्रब इलाही स्टार टीचर अवार्ड दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज गुलिस्तान कॉलोनी में टीचर्स डे मनाया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर आयशा जफर असाजा और तालबात ने केक काटा। असाजा को खराज तहसीन पेश किया गया। टीचर्स की मोटिवेशन के लिए, उनको बैकअप करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे दिन मनाते जाएं। यूँ तो ये उस्ताद वालिदैन इनका साल में एक दिन मनाया जाता है, लेकिन आप देखें तो हर दिन हम इनके कितने एहसानमंद होते हैं। उस्ताद एक ऐसी हस्ती है जो इंसान को इतना मजबूत बना देती है, और मैं भी अपनी उस्तादा की वजह से यहाँ खड़ी हूँ। उनकी मेहरबानी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे स्कूल टीचर्स की वजह से हम यहाँ पे हैं और हमारे कॉलेज टीचर्स की वजह से हम आगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और उन्होंने हमें इस काबिल किया है कि हम आगे यहाँ पे खड़े हो सकते हैं और आगे इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। एजुकेशन राइट्स कमीशन के तहत कायद एकेडमी में मुकर्रब इलाही स्टार टीचर अवार्ड तकरीब का इनकाद किया गया। डिविजनल डायरेक्टर एजुकेशन कशूर नाहिद राना, सीईओ एजुकेशन काशिफ जिया, प्रिंसिपल कायद एकेडमी डॉक्टर नजमा, डिप्टी डीईओ एजुकेशन फारूक जाहद की खसूसी शिरकत। एजुकेशन राइट्स कमीशन के चेयरमैन असलम भट्ट और सदर शाहद मुकर्रब ने मेजबानी की। तकरीब में बेहतरीन साजा में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। प्रिंसिपल फतह मोहम्मद साबर, बुशरा नाहिद, काशिफ भट्ट, यासर अरफात, प्राइवेट स्कूल्स फोरम से नदीम सिंधु, चौधरी गुलजार, हाजी जावेद इकबाल, मियां नदीम शहजाद, हाफिज महमूदुल हसन और दीगर साजा की शिरकत। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस में भी टीचर्स डे तकरीब मुनक्कद की गई। कैंपस डायरेक्टर जाहद भट्ट ने प्रिंसिपल शफीकुर रहमान के हमरा बेहतरीन नताइज देने वाले साजा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गुड़ मेले का इनाकाद किया गया। दूसरे रोज भी तलबा और तालिबात का रश रहा।
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 3 रोजा गुड़ मेला जारी है। खानों के स्टॉल सजे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी रूनुमाई हुई। पंजाब के सकाफती रंग ने शुरा को अपनी तरफ खींचा। गन्ने के रस से तैयार किया गया गुड़ शुरा की तवज्जो का मरकज रहा। तलबा कहते हैं ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। नई नस्ल में मेलों और सकाफती त्योहारों का शौक बढ़ता है। और प्रोडक्ट्स के लगे हुए हैं, साथ में शॉपिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं। ज्वेलरी, एक्सेसरीज, काफी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और हमारे सकाफत के मुताबिक यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। मजे मजे के स्टॉल भी लगे हुए हैं खाने के, और साग भी मौजूद था जो अब आने वाला है। हमारा आने वाला मौसम जो सर्द है जिसमें लोग साग को बहुत पसंद करते हैं। कश्ती बेड़ा हो गया, ये पुराने मेलों में लगाया जाता था। आजकल तो वैसे ये पुराने स्टॉल लगे हुए हैं, ये भी ठीक नहीं है। गुड़ मेले में तुलबा और तालिबात के साथ साथ शहरियों ने भी खूब इंजॉय किया। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।